बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है बलराज नाइक ने। आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ जैसे BALARAJ था तो हम लोगों को लगा कि ए में भी वो साइलेंट कंसीडर हो, तो इसलिए हम लोग बालाराज नहीं बलराज बोला, क्योंकि बलराज हम लोगों ने सुना। एनीवे वीडियो का टाइटल है डॉग्स ऑफ ऑनर मुधोल हाउंड्स इन इंडियन आर्मी। तो देखते हैं डॉग से रिलेटेड वीडियो है और फिर मौसम की स्टोरीज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इससे रिलेटेड। बट अभी हम वीडियो देखते हैं, और लेकिन इससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। ओके Here's the first Indian dog to be drafted into the Indian Army. So Indian. And there's reason to celebrate. Fiercely brave and loyal, traits that are perfect to protect the nation. The one and only Mudhol Hound. Mudhol hounds have a unique and distinguished look, beautiful with graceful features. Anointed with athletic long legs, a slender body, an elongated skull, and a tapering muzzle. These dogs are ideal for hunting. Unique eye placements give them a 270-degree vision, making them the perfect specimen of a sight hound. Story has it that the Raja of Mudhol, a tiny region in present-day Karnataka, presented King George V with two pups, and he christened them as Mudhol hounds. Their tryst with royalty continues, as it is said that the two dogs that lie beside the great Chhatrapati Shivaji were Mudhol hounds and were famed for their courage and loyalty. After the decline of the princely state of Mudhol, the hounds lost some of their glamour and privilege, but were adopted by the local villagers for their functionality as hunting and guarding dogs. In order to conserve this magnificent species, a canine research and information center was established by the government of Karnataka in 2010. The villagers who had helped the breed survive became beneficiaries of the revival scheme. Today, these impeccable hunting hounds are beginning to relive the glory of their past. In recognition, the Indian government had released a special stamp to celebrate this Indian hound. It is here in the Meerut cantonment that a 200-acre state-of-the-art dog training facility is instrumental in training the dogs for the Indian Armed Forces. It was almost 2 years back. Karnataka government has sent a proposal for gifting Mudhol hounds so they can be tried in the Indian Army. Then we thought of trying them for training in the army. So we put them once after receiving at the age of 6 months. We put them in the obedience training and afterwards some specialized training. So that we can see there how they can adapt to the army. Since being the Indian breeds, so they are very easily available and well adapted to our conditions. Oh my God. But now they have discovered that when it comes to the circuit, from hurdles to ropes, from bridges to scaling walls, and even chasing a motorcycle, the Mudhol hounds far outpace the German shepherds. This speed, when matched with their outstanding stamina, make them highly competent guard dogs for the armed forces. Once the training is complete, the Mudhol hounds, outfitted with doggy coats and boots, will make their way to the Himalayas. Here, these brave warriors will help patrol the high mountains and our borders. Once the companions of royalty, they are today royalty in their own right. The first Indian breed
to serve in the Indian Armed Forces, the mighty and magnificent Mudhol Hound. अगर बात करें इन डॉग्स की तो ये वाले डॉग्स जो हैं वाकई बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं। मैंने देखा हुआ है अपनी जिंदगी में। हमारे फैमिली मेंबर के पास था। हाँ, बहुत देर पहले उनके पास इसी तरह का इनके सेम यही चीज थी उनके पास। तो उनके घर कभी जाना करना ना, उन्होंने उसे खाना जब खिलाना करना, उसने उनके यहाँ पे जो है हाथ रखे उन्होंने खाना खा रहा था। और मौसम में देखो कितना स्लिम है ये, और उसकी टांगे देखो कि वाकई में पता चलता है कि भागने वाली टांगे हैं। और मौसम मजे की चीज ये है कि जो हमारे मतलब रिलेटिव्स के पास जिनके पास है वो लोग भी गांव में थे। हाँ। और इसमें भी दिखाया हुआ है कि गांव में लोग। अच्छा, इस डॉग की जो है ना मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जिस रिश्तेदार के पास ये डॉग था ना, उनकी जो दीवार है ना वो तकरीबन 5 फुट 5-6 इंच की उनकी ना दीवार है। तो वो जब इसे खोलती थी ना, ये जो है दीवार फलांग के बाहर चला जाता था। और इसमें भी हम लोग जैसे ट्रेनिंग को दे रहे हैं, फिर उसकी आईसाइट कितनी शार्प है और 270 डिग्री यार। और फिर उसको काफी मतलब बेसिकली जिस पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो भी वीडियो में बताया गया कि बॉर्डर्स वगैरह पर पेट्रोलियम वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और जो गांव के लोग हैं वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं वो भी वीडियो में दिखाएगा। अगर वैसे देखा जाए ना, डॉग्स के साथ जो है इंसान जो है काफी पुराना रिश्ता है, काफी जो है इससे जो इस्तेमाल किया जाता है अपनी हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए। क्योंकि अक्सर लोगों को देखा जाए जिन्होंने डॉग्स रखे होते हैं वो इनके हंटिंग टाइप डॉग्स, एक तो डॉग्स होते हैं ना जो दूसरे फ्लफी टाइप होते हैं, दूसरे वो तो क्यूट से वो प्यार लेकिन भौंकने पे जब वो भी आते हैं ना वो भी बड़ा पीछे पड़ते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें ना तो ये लोगों ने स्पेशल अपनी सेफ्टी के लिए घरों में रखे होते हैं। बाजी के घर भी मुझे लगता है इसी तरह का है, लेकिन वो ये नहीं है। लेकिन अब आके मैं उससे नहीं डरता, क्योंकि अब जो है ना वो इतना कुछ नहीं कहता। पहले तो उनके घर जाते थे ना, वो एंटर भी नहीं होते, दरवाजे के नीचे सूंघ के भौंकने लग पड़ता था वो। बिल्कुल। और इससे रिलेटेड थोड़ी सी जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाली है वो ये है कि मुधोल हॉर्न इज आल्सो नोन एज कारवान हॉर्न, जो कि एक इंडियन डॉग ब्रीड है। और जैसा कि बताया गया कि इसकी रखवाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो है ये एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाला यानी कि घरेलू जानवर है, जो कि इंडियन जो कर्नाटका स्टेट है उसके गांव में जो है ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा जो है शिकार के लिए या हिफाजत के लिए। और 9 जनवरी 2005 को इन रिकॉग्निशन ऑफ मुधोल हॉर्न 3 स्टैम्प्स पोस्ट की गई थी इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा 3 डॉग्स थे, जिनमें से एक था हिमालय शीप डॉग और वो स्टैम्प 5 रुपीज की थी। एंड देन रामपुर हॉर्न जिसकी स्टैम्प 5 रुपीज की थी। और फिर था राजपल याम जिसकी 15 रुपए की स्टैम्प थी। और अगर इस डॉग की बात करें तो इसमें इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं दूसरे जितने भी डॉग्स हैं उनके मुकाबले में, कि ये फील्ड पे अगर हो तो ये बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देता है अपने काम में। और जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में भी देखा कि थोड़ा सा उन्होंने हिस्ट्री का बताया कि जिस तरीके से मुधोल स्टेट के जो राजा थे उन्होंने जो इंग्लैंड के जो किंग थे उनको पेयर ऑफ मुधोल गिफ्ट किया था। हाँ, डॉग्स गिफ्ट किए थे। तो अराउंड 750 फैमिलीज जो कि मुधोल टाउन में है कर्नाटका में, वो इस डॉग को उनके मतलब पपीज को रिप्रोडक्शन कर रही है ताकि उनका एक किस्म का बिजनेस है ताकि वो उनको बेच सके। और अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है सेंट्रल एशिया और अरेबिया से जो है डेक्कन प्लेटू ऑफ वेस्टर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई गई थी ये ब्रीड। और अगर इसकी नस्ल की कनेक्शन की बात करें तो ये सलूकी और टेजी जो कि अफगानी ब्रीड्स हैं, हाँ डॉग्स की ब्रीड्स हैं, उनसे डायरेक्ट जो है इनका कनेक्शन मिलता है। एंड दिस ब्रीड इज वेरी पॉपुलर इन एंड अराउंड मुधोल तालुक ऑफ कर्नाटका, जिसकी वजह से इसका नाम मुधोल हॉर्न पड़ा। और अगर इंडियन आर्मी की भी बात करें, जैसे बीच में दिखाया गया कि पेट्रोलिंग के लिए जो है उन्होंने जो है हाई रेंज माउंटेन जहाँ पे नहीं चढ़ सकते वहां के लिए इन जो है डॉग्स को स्पेशल रिक्वेस्ट पर रखा है अपने पास सर्विलेंस
डिफेंस और बॉर्डर प्रोटेक्शन सिक्योरिटीज ड्यूटीज के लिए। और जैसे कि मौजम ने जिक्र किया कि स्पेशल रिक्वेस्ट पर मतलब इंडियन आर्मी ने उनको रखा और उसके लिए 6 मुद्दुल डॉग्स उनसे हैं वो लेकर आए टेस्टिंग के लिए लेकर आए आर्मीज रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स में जो कि मीरठ में है। तो और उसके बाद फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, और ट्रेनिंग हम वहाँ पे देख रहे थे, कितनी मजे की ट्रेनिंग दे रहे थे। जैसे वो बीच में एक जो व्हाइट कलर का डॉग था वो कैसे खड़ा होके चल रहा था। फिर उसके बाद मौजम देखो कि जब उसने वो मोटर बाइक पर चेज करना था, फिर उसके अलावा टायर्स पर जंप करके और मतलब अच्छा वैसे इंसानों की तरह बिल्कुल ट्रेनिंग। वैसे अगर सही बात है। वैसे अगर इन डॉग्स की बात करें, जैसे वो 2 पैरों में से दिखाया खड़ा हो गया, अगर वो वाकई इस तरह जो है किसी इंसान के सामने इतना बड़ा कुत्ता खड़ा हो जाए ना, इंसान वैसे ही डर जाए। वैसे ना बहुत इंटरेस्टिंग मुझे वीडियो लगी, लेकिन इसके साथ मैं मौजम का भी एक इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ क्योंकि ये जहाँ पर कुत्तों को देखता ना ये भाग जाता है। इतना शुक्र है मेरा आज तक कभी इस कुत्ते से पाला नहीं पड़ा। लेकिन ये है कि जो लोकल लोग हैं वो भी तो देखो कि कितना ज्यादा एक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अब अगर ये देखो कि अब जैसे एक अवेयरनेस लोगों में आएगी, देखा जाए तो एक रॉयल डॉग इसको कंसीडर किया जाए। वैसे अगर मैं डॉग्स की बात करूँ ना, जब तक आप उसके साथ नहीं ना रहते, किसी भी चीज या किसी भी जानवर के साथ जब तक आप नहीं रहते, आपके दिल में ना एक डर रहता है। लेकिन अगर आप उस चीज को पालना शुरू कर दें ना, छोटा ही लेके आइएगा, लेकिन जब आप पालना से शुरू कर दें तो फिर जो है ना आपकी एक कनेक्शन हो जाता है और डर भी खत्म हो जाता है। बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जिक्र किया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस है इस डॉग की कि मतलब इसने काफी ज्यादा मतलब बोलेंगे कि पुरानी इसकी एक तारीख रही है। तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपनी ही जो कंट्री के जो आपके एनिमल्स हैं आप उनको प्रोटेक्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे छोटे छोटे पपीज भी दिखाए थे ना, वो भी बहुत क्यूट लगते हैं। बहुत मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। वेल ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप लोगों में से कौन इसके बारे में जानता था और आप लोगों में से किस किस के पास ये है, ये भी हमारे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। और इसी के साथ इजाजत, फनी वीडियोस करें, लाइक चैनल सब्सक्राइब वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।